आज ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਦਾ ਐਂਡ ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ। ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਕਨਸੈਪਟਸ ਹੈਗੇ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਕਨਸੈਪਟ ਸਾਰੇ ਇਸ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ। ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬੋਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦਾ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 2 to 3 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦਾ ਐਂਡ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਹੈ ਬੋਰਡ ਵਾਲੇ ICSE ਵਾਲੇ। ਸੋ CBSE ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ICSE ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਉਂਦਾ ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਥਰੂ ਅ 45 डिग्री 90 डिग्री 45 डिग्री प्रिज्म। 45 मतलब दिस प्रिज्म इज बेसिकली आइसोसेलेस प्रिज्म। आइसोसेलेस तो ट्रायंगल पता है, ये दो साइड्स इक्वल होंगी हैं। इक्विलेटरल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੁਇਲੇਟਰ ਗਿਵਨ ਹੋਵੇ ਮਤਲਬ ਤਿੰਨੇ ਸਾਈਡਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ 45 ਡਿਗਰੀ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਫ ਅ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਦੋ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਕੁਅਲ ਹੈਗੇ 45 ਐਂਡ ਦਿਸ ਨਾਰਮਲ ਇਜ਼ 90। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ ਨਾਰਮਲ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈਨ ਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਜਾਂਦੀ ਲਾਈਨ, ਅਨਡੇਵੀਏਟਡ, ਕਿਤੇ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਪੈਨਸਿਲ ਸਕੇਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਫ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਕੇਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਸੋ ਕਾਪੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਇਸ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਆਉਂਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। 45 डिग्री ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਆਈਸੋਸੇलेस ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਹੈਗਾ, दिस इज 90 डिग्री अनडेविएशन शो करता है नॉर्मल, ठीक है। मैथमेटिक्स ज्योमेट्री का कंसेप्ट है साडे कोल, अगर साडे कोल ऊपरला एंगल 45 डिग्री है, दिस इज 90 डिग्री, तो ये एंगल कितना होएगा दसो जी। सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल शुड बी 180 डिग्री। सो दिस इज 45, दिस इज 90, ये साडे कितना होएगा 45 डिग्री। होप कि सानू समझ आ गया होना। अगर ये 45 डिग्री है 90 है तो ये कितना होएगा साडा 45 डिग्री। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਨਾਰਮਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਿਦ ਸਕੇਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਨੀਟ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੀ ਕਾਪੀ 'ਚ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ठीक है जी। अगर मेरा ए एंगल 45 डिग्री है, नॉर्मल मैं ड्रॉ किया, मतलब कि मेरा नॉर्मल कितना है बेसिकली, कितना होता है नॉर्मल का मतलब कि 90 डिग्री। अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी एंगल कितना है 45 डिग्री, ठीक है बच्चों। अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी साइड एंगल कितना हो गया 45 डिग्री। सो कल ਅਸੀਂ ਕੰਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, अगर क्रिटिकल एंगल ग्रेटर हैगा एंगल ऑफ इंसिडेंस तो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੀਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਟੌਪਿਕ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ व्हेन क्रिटिकल एंगल इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस, उस टाइम साडी ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੀਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। व्हेन क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, उस टाइम मैं ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ग्रेजिंग इमर्जेंस। स्टूडेंट्स अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਯਾਦ ਹੋਵੇ मैं दसिया ਸੀਗਾ अगर क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस है, उस टाइम ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ग्रेजिंग इमर्जेंस। सिमिलरली अगर क्रिटिकल एंगल लेस देन एंगल ऑफ इंसिडेंस तो फिर उत्ते की होगी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। व्हेन क्रिटिकल एंगल इज लेस देन एंगल ऑफ इंसिडेंस, उस टाइम की हो रही है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हुन देखो जी एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना साडे आ गया, नॉर्मल दे नाल जेड़ा एंगल हैगा उस साडे की एंगल ऑफ इंसिडेंस है, दैट इज 45 डिग्री। okay, it is 45 degree. Critical angle value is 42 degree. So critical angle here in this case is less than angle of incidence. numerical exam ਦੇ ਵਿੱਚ given ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ critical angle ਜੋ value ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ near about ਹੁੰਦੇ 42 degree ਤੁਹਾਨੂੰ value ਦਿੰਦੇ ਆ and ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ and numerical ਵੈਸੇ ਹੈਗਾ numerical based ਹੀ ਹੈ but theoretically ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੀਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਅਗਰ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਗ੍ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਇਮਰਜੈਂਸ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਲੈਸ ਦੈਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 45 ਡਿਗਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 45 ਡਿਗਰੀ। ਸੋ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब कि रे ऑफ लाइट
बाहर नहीं जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, अंदर ਨੂੰ सिस्टम के अंदर आएगी, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है। सो इस डायग्राम को प्रॉपर्ली बना लो। सो दिस एंगल इज अवर रिफ्लेक्शन, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है, एंड लाइन साडी बाहर जा रही है। सो दिस मेक्स द एंगल 90 डिग्री। देखो जी, हूँ अगर ए 90 है, ए 45 डिग्री है, तो ए भी साडा एंगल कितना हो गया 45 डिग्री। सो सिंपल क्वेश्चंस आंदे हैं बेस के ऊपर, न्यूमेरिकल्स आंदे हैं, क्रिटिकल एंगल ਤੁਹਾਨੂੰ गिवन ਹੁੰਦਾ क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ 42 डिग्री न्यूमेरिकल्स पेपर पॉइंट ऑफ व्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, जरूर ਇਹਦਾ न्यूमेरिकल करके जाइयो। आई डोंट नो व्हाई स्टूडेंट्स ਇਹਦਾ न्यूमेरिकल स्किप करके ਜਾਂਦੇ, एंड आई थिंक ये फ्री ਦੇ मार्क्स ਤੁਹਾਡੇ बोर्ड्स ਦੇ ਵਿੱਚ, एंड ਇਹ क्वेश्चन सिर्फ आईसीसी वाले ਨੂੰ क्वेश्चन ਆਉਂਦਾ ਹੈ, नॉट सीबीएसई। 45 डिग्री 45 डिग्री दैट इज आइसोसेलेस प्रिज्म। 90 डिग्री पर स्ट्राइक किया, नॉर्मल ड्रॉ की लाइन, अगर ये 90 डिग्री है, ए 45 डिग्री है, तो ए भी साडा एंगल कितना आएगा 45 डिग्री है। वो नॉर्मल ड्रॉ करते लाइन, ठीक है। दिस फुल एंगल इज 90 डिग्री, मतलब ए भी 45 डिग्री, ए भी 45 डिग्री। उधर 10 की हटिया, अगर 45 डिग्री का आंसर आ गया, क्रिटिकल एंगल गिवन कितना सीखा 42 डिग्री, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल इन दिस केस। हियर आई हैव रिटन एज CR, दैट इज क्रिटिकल एंगल, शॉर्ट फॉर्म दे विच, that is our critical angle. So yes students, second case ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ total internal reflection through a prism where each angle is 60 degree। ठीक है जी, लास्ट केस ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ आइसोसेलेस वाला, ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ इक्विलैटरल ਦਾ, हर एक एंगल कितना ਹੈਗਾ 60 60 ਦਾ, 60 60 60। प्रॉपर्ली इस डायग्राम ਨੂੰ ਕਾਪੀ 'ਚ ਬਣਾ ਲਿਓ, ठीक है। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਰਮਲ ਮੀਨਸ ਅਨਡੇविएटेड जो लाइन जा रही है सीधी, बिल्कुल सीधी जा रही सीगी। इतो फिर दोबारा नॉर्मल बनाना है, तुम दसिया सीगा मैं। अगर ये 90 है, कितना होगा, ये अपना 60 गिवन है, ये कितना होगा 30, 90 60 30, हर एक एंगल कितना है 60 है, नॉर्मल पास पे 90, ये कितना होगा 30। अगर साडा ए वाला एंगल 30 है, तो आ वाला एंगल कितना होगा 60, बिकॉज ये टोटल एंगल कितना बन रहा है 90 का। सो अगर आई दी वैल्यू 60 है, तो दसिया सीगा मैं केस, इफ आई 60 एंड क्रिटिकल एंगल साडे कोल 42 डिग्री है, मतलब आई इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, सो 60 डिग्री इज ग्रेटर देन 42 डिग्री। सो की होंदी है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, सिंपल लाइन बार खींच दो। एंड सिमिलरली जो साडा आ वाला एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है। अगर मेरे को एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 आ रहा है, दिस विल आल्सो बी 60, ठीक है। एंड 30 60 दिस वुड बी obviously this is 90। so साडा ये केस का सेकंड केस, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन थ्रू अ प्रिज्म वेयर ईच एंगल इज 60 डिग्री। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू 30 डिग्री 90 डिग्री एंड 60 डिग्री प्रिज्म, दिस कैन आल्सो बी रिटन एज द राइट एंगल प्रिज्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये भी बेस के ऊपर न्यूमेरिकल्स आंदे दे विच भी, ठीक है। तीनों ही केस इंपॉर्टेंट है। सो here given 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है। रे ऑफ लाइट नॉर्मल मीट कर रही है, जैसे जिदा सी पिछले करके हटे केस दे विच। देखो ना अपने आप ही 30 90, ये एंगल कितना बनेगा 60 डिग्री, बिकॉज सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। 30 60 90, अगेन वी हैव टू ड्रॉ हियर नॉर्मल। बेटे नॉर्मल बनाना ना भूलियो, क्योंकि नॉर्मल ਦੇ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ क्वेश्चन ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ, ठीक है। नॉर्मल ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿਓ याद इन दिन, एंड ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਸਿਲ ਸਕੇਲ ਨਾਲ ਡਰਾ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है जी। ਹੁਣ ਇਹ ਨॉर्मल पर ਡਰਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 90 डिग्री 60, एंड दिस एंगल वुड बी 30 डिग्री। एंगल 30 डिग्री मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस हियर इज 30 डिग्री which is less than critical angle की वैल्यू 42 डिग्री। सो इस केस विच की हो रहा है साडा रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। हियर रिफ्रैक्शन होगी फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, साडा जाएगा बाहर नु इस तरह। प्रॉपर्ली स्केल बना लियो।
90 degree, 30 degree, 60 degree. This here we make it the normal 60 degree, 30 degree. ठीक है, I is equal to 30 degree here. So here would be from density to radial medium बार लाइट जाएगी, that is अब लिखेंगे रिफ्रैक्शन. यहां पर रिफ्रैक्शन हो रही है. ये स्टूडेंट्स, so it is a very important numerical for ICSE boards and 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ क्वेश्चन ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ. A ray of light enters a glass slab AC as shown in the figure and strikes at the center of a circular path AC of the slab. The critical angle of the glass is 42 degree. Complete the ray till it emerges out from the glass, out from the slab. Mark the angles in the diagram whenever necessary. So ये क्वेश्चन आया 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हैगा. 42 डिग्री एंगल गिवन हैगा. ठीक है, अगर ये 42 डिग्री रहेगा तो इसका एंगल कितना होगा? 48 डिग्री. नॉर्मल से बना के ਇੱਥੇ 48 डिग्री है. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है. ठीक है, बिकॉज अगर ਅਸੀਂ नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, दिस होल एंगल इज 90 डिग्री एंड दिस एंगल वुड आल्सो बी 90 डिग्री. ठीक है, सो अगर साडा एंगल ऑफ इंसिडेंस 48 डिग्री हैगा तो मैं दसिया सीगा, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, then there would be total internal reflection. ठीक है, टॉपिक मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड क्रिटिकल एंगल ਦਾ. अगर मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज 48 डिग्री आ गया, ठीक है, ਤੇ ਮੇਰਾ ਜੋ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੈਗਾ? क्रिटिकल एंगल ਤੋਂ. ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸਾਡਾ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है. क्या हो रही है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. दिस वुड आल्सो बी 90 डिग्री, 48 डिग्री, 42 डिग्री. ठीक है, सो अगेन हेयर भी ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ, this whole is 90. If this is 90, this is 48, then this angle would be 42 डिग्री. सारे समझ आ गया? रे ऑफ लाइट का पास करवाइए. ठीक है, नॉर्मल थे बनाया आप, नॉर्मल बनाया था. दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, दिस वुड बी 42 डिग्री because this is 48 degree, because sum of the angles of a triangle is 180 degree. 90, 48, 42, that is 180. ठीक है, सो अगर एंगल ही 42 डिग्री आ गया, एंगल ऑफ इंसिडेंट 42 डिग्री आ गया, दिस इज अवर सेकंड केस दैट वी नो दैट if angle of incidence is equal to critical angle is also 42 degree, angle of incidence is also 42 degree. If both are equal to each other, that is, it is known as grazing emergence. So ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ बोर्ड वाले ने ਤੁਹਾਡਾ क्वेश्चन की पाया ICSE वाले ने. ग्रेजिंग इमर्जन का मतलब रे ऑफ लाइट किधर जाएगी? बिल्कुल ऑन द सरफेस. बिल्कुल सीधी लाइन आगे जाएगी. ना ही वो लाइन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करेगी, ते ना ही वो लाइन की करेगी रिफ्रैक्शन. की करेगी वो ग्रेजिंग इमर्जेंस.